Jai Mukti ji. Jai Jinendra, can you hear me? Yes. Mukti, unmute कीजिए Mukti ji. Oh, yes, sorry. Huh? Am I audible to you now? Yes, Jai Jinendra. Jai Jinendra, Jai Jinendra. Okay, just wait for a sec. Okay. Shall we begin? Should I start? Yes, Mukti ji, please start. Yes, yes, yes. Okay. Let's do the Manglasharan. Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyanam, Namo Uvachayanam, Namo Lohe Savasahunam, Kashaya ki upashantata, Matra Moksha Abhilash, Bhavabhiru Prani Daya, Yahe Atmartha Nivas. Okay, so when we turn the pages of history, it gives us immense pleasure to learn how our ancestors, our forefathers, fought for the freedom of our country, how they fought to keep our country intact and united. Right? They sacrificed themselves, they sacrificed their families, they sacrificed their wills and wishes so that we can sleep well today. We Jains too. That was think about nation as a whole. Now, coming to Jains, we Jains too have had a prolonged history. Our ancestors have also gone through a lot under the reign of like Britishers and more under the reign of Mughals. Like considered the Mughals, the Muslims were considered to be the cruelest ones who ruled India. Um, and Jains suffered a lot under the reign. How? Because Mughals basically aimed at expansion of Islam. Actually, whosoever ever ruled in India aimed at the expansion of their religion and all, but it was Islam, it was Mughals who specifically did it. They aimed at the expansion of Islam and they forced people to become Muslims even if they did not want to. It's not only about Jains. Whosoever existed at that time apart from Muslims were all forced to do certain things. They were forced to violate their rules and violate their morals. Jains too had to were forced to violate their rules and violate their morals. As I said yesterday, the word I used yesterday, culture is like an ID card of a particular religion or so. So to destroy the identity, the like people usually try to destroy culture. Now, how do they try to destroy culture? Like under the reign of Muslims, Muslims did not allow the Jain practices. For example, it's
are like it's considered to be the main thing of Jains, and जैनियों को इस चिन्ह से जाना जाता है कि Jains don't eat at night. Jains are रात्रि भोजन त्यागी. But what did Muslims do? What did Mughals do? Aurangzeb, who was the cruelest of them, they issued an order that if you see anyone practicing these things, like the particular Jain things or anything like that, you can kill them or you can detain them. So so they were not allowed to eat at day and they were forced to eat at night. कि आप prove करो कि आप you are no more a Jain and you are no more a follower of Jainism, and so that and इसके लिए क्या करना होगा? You will have to eat at night. And they used to do patrolling and they used to do checking कि Jains के घर के बाहर that क्या ये रात को क्या कर रहे हैं, they are in kitchen or not. हाँ, अगर इंसान दिन में नहीं खाएगा तो ऑब्वियसली उसको भूख लगेगी, इसके लिए वो चेकिंग करते रहते थे कि ये खा रहे हैं कि नहीं रात को, ये जैन रूल्स तो फॉलो नहीं कर रहे ना. तो Jains, what did Jains used to do, they used to make fake noise out of utensils and all. झूठा झूठा धुआं बनाते थे, like they used to make smoke and make the noise out of utensils, so as to make the patrolling groups believe that they were not following Jain things and they were following the king's orders, the king that existed at that time. This is all they could do if they wanted to live, otherwise they would have got killed. And it's not always thoughtful कि जोश जोश में आके नहीं हम तो मरने के लिए तैयार है, नहीं हम तो मरने के लिए तैयार है. It's not always thoughtful. Sometimes you have to मतलब रास्ता निकालना पड़ता है, make way out. So that's what they used to do without actually violating the rules and also making the king believe that they were following him. They used to do these things. What seeing this, actually Mughals तो बाद में आए, but पहले भी ये होता था, and also Englishmen also used to force Jains to do such things. Seeing all this, Queen Victoria, when she visited India, she also humble request to all, if you could all please mute your calls so there would be no disturbance in between. Yes, Queen Victoria issue, it is said that I've read that all that we can rely upon is history. So she said that she issued an order for Jains to be released from their workplaces an hour before sunset. Why? Because she knew कि Jains अगर रात को घर पे पहुंचेंगे, they want to eat. So maybe they will only have one meal in a day, which is not good. So maybe she had that soft corner in her heart, or maybe she understood the significance of values. So she issued an order for Jains to be released, and that is how some Britishers supported us. Do you know that some of the Jain scholars have in their in which scripture I don't actually remember, मेरे को याद आएगा तो बताऊंगी, उन्होंने मंगलाचरण जो होता है ना स्क्रिप्चर का, मंगलाचरण is the very beginning of the scripture, like नमोकार मंत्री is beginning is मंगलाचरण of ग्रंथ छठ खंडागम. ऐसे ही एक मंगलाचरण में किसी एक विद्वान ने, किसी एक पंडित जी ने, they have hailed the Englishmen, they have hailed the Britishers. Why? लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन भी लिया उस टाइम पे. इनफैक्ट जो नेशनल एंथम है इंडिया का, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर हैज लाइक इट हैज नथिंग टू डू फाइन, लेट्स टेक जैन स्कॉलर, उन्होंने हेल किया इंग्लिशमैन को. तो लोगों ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? बाद में पता चला कि ब्रिटिशर्स हेल्प्ड वे अ लॉट, लाइक उन्होंने हमारे मॉरल्स, कुछ ऑपरेसर्स थे जरूर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया और जिन्होंने एक्चुअली जेंट्स को बहुत सारे
प्रिविलेजेस दिए। इस मामले में प्रिविलेजेस कहने की अपेक्षा कुछ उनके वैल्यूज उनको फॉलो अप करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। तो क्वीन विक्टोरिया वाज वन ऑफ देम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, the state of affairs was very different in previous days. They faced a lot of problems. They could not even raise their voices as we can do today. They did not have freedom of speech. So, but today we have all this. We have all kind of freedom. State of affairs has changed today. The world now is completely a different world from what it was before. इवन नाउ अगर आज भी हम बहाने बनाते हैं, पहले इतने ऑपरेसर्स के बीच में रहकर भी पीपल यूज टू फॉलो देयर मॉरल्स, एंड अगर आज हम बहाने बनाते हैं, इफ वी लाइक जस्ट मेक एक्सक्यूजेस कि जॉब ही इतने से इतने बजे तक का रहता है, कब आएंगे कब बनाएंगे, या फिर बाहर जाना रहता है, या फिर ऐसा और वैसा, सो इट्स नॉट डन, इट्स नॉट फेयर। हमारे एंसेस्टर्स ने इतना किया और हम इतना भी नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज सच प्रैक्टिस, रात्रि भोजन त्याग, और we just don't have to follow because our ancestors did. There are reasons behind it. What are they? First of all, let us see what is written in scripture. Ratnakara Shavkacharya, you all must have heard the name of Ratnakara Shavkacharya, right? It was written by Pandit Sadasuk Das ji, who was very genuine and authentic writer, and his writing is nowhere questioned. He did not actually write Ratnakara Shavkacharya. He wrote it stika, bhasha vachanika, like yes, just explain the stuff. So in that he wrote that जिन धर्म के धारक रात्रि में भोजन नहीं करते, यह सनातन रीति है। करोड़ों लोगों में यह बात प्रसिद्ध है कि जिन धर्मी रात्रि में भोजन नहीं करते। क्या लिखा कि Jains don't eat at night, and this is a well-known fact. Crores of people know that Jains don't eat at night. Even today, people like put such questions on Quora, which is a matter of pride. Quora and other Google and other like questioning platforms. Why don't Jains consume food at night? Why do Jains use filtered water? So it is identity. People still do know that we follow these practices, and isn't this a matter of pride for us? Doesn't this stand as an individual identity for us? So this is something to be followed. Now let's see why. First of all, one who does not follow this practice of Ratri Bhojan Tyag is not eating food at night, is no Jain in true sense. Why? It's so significant. Even acharyas or scholars thought that if people don't follow these Ratri Bhojan Tyag and all, it might bring a downfall to the culture, Jain culture and traditions. And that is why at many places it has been mentioned that it is necessary to do Ratri Bhojan Tyag. Tyag is to abandon something. I hope you are understanding. So to do Ratri Bhojan Tyag, like there is a scripture named Sagar Dharmamrit, written by Pandit Ashadhar ji, who was previously a Kshullak or Elak, and afterwards he became a Pandit. His writing is also genuine. Yes, we can say there are some certain places where he can't be, where like the places are questionable, but still most of his parts are, the parts of scriptures are authentic and genuine. So in that he has written that Ratri Bhojan Tyag 8 मूल गुणों में से एक है. You must know what 8 मूल गुण are. Ratri Bhojan Tyag means not to eat after sunset. Ratri is night. जिसको भी clear नहीं हुआ हो, हाँ, Ratri is night, Bhojan is bhojan, like to eat food, and Tyag कि रात्रि में भोजन करने का, नाइट को फूड खाने का त्याग, उसका like to leave that thing, हाँ. तो
त्याग होना चाहिए और वो क्यों नेसेसरी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो हाँ आशाधर जी, हाँ 8 मूलगुण में उन्होंने इसको इंक्लूड किया। 8 मूलगुण आर समथिंग कि वो तो बहुत ही बेसिक चीज है। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग 8 मूलगुण देन व्हाट आर वी डूइंग, वी आर नॉट इवन जैन्स इन ट्रू सेंस। 8 मूलगुण में बेसिकली तो ये लिया जाता है 5 उदंबर फल्स about which we were discussing yesterday, I think, yes. And madhya मांस मधु like meat, वाइन एंड हनी का त्याग, इस ये बेसिक परंपरा है कि ये 8 मूलगुण है, इनका त्याग करना। बट देर आर मेनी अदर अपेक्षास, लाइक मेनी अदर विद्वांस हैव टू से मेनी अदर थिंग्स इन दिस। सो आशाधर जी हैज also named रात्रि भोजन त्याग in 8 मूलगुण। He said that उन्होंने शायद ऐसा किया है कि 5 उदंबर फल को पूरा एक में ही लिया है और फिर 8 मूलगुण में बाकी चीजें लिए हैं, जैसे वाटर फिल्ट्रेशन एंड रात्रि भोजन त्याग। तो इसमें उन्होंने लिया। बाकी किस में लिया है? डू यू नो कि मंक बनते हैं ना, मुनिराज बनते हैं, उसके पहले 11 स्टेजेस होते हैं, 11 प्रतिमा जिसको कहते हैं। फॉर दोज हु डोंट नो, बस इतना समझिए कि मंक बनने के पहले ये 11 स्टेजेस नेसेसरी, not that necessary, but yes, most of them actually there are some मतलब थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये चीजें फॉलो होती है मंक बनने के पहले, मुनिराज बनने के पहले। तो उसमें जो 11 स्टेजेस है उसमें फर्स्ट, आई एम सो सॉरी, सेकंड स्टेज जो व्रत प्रतिमा है उसमें विद्वानों ने कहा है कि रात्रि भोजन त्याग नहीं करना चाहिए, बेसिक है ये। और इसके बाद एक अलग सा 6th स्टेज है, उसी 11 प्रतिमा में एक 6th प्रतिमा है जिसका नाम है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। अलग सा नाम ही दे दिया उन्होंने, इसको इतना इंपॉर्टेंट समझा कि 11 प्रतिमाओं में 2 बार उसका नाम दिया। उसमें भी डिफरेंसेस हैं, जैसे अब 2 बार नाम क्यों दिया, तो जो 6th प्रतिमा है उसमें जो पर्सन होता है उसको ऐसा सोचता भी नहीं है, एक थॉट भी नहीं आता है कि मैं रात्रि भोजन कर लूं। वेयर इन सेकंड प्रतिमा कभी गलती से ऐसा हो सकता है कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, बाकी भोजन तो कोई नहीं करता है रात को। I'll be explaining this later on. Now the question arises, there is also one more apeksha actually. There is a scripture named Sarvat Siddhi, written by Pujyapad Swami, Pujyapad Acharya. He has written in that कि मुनियों के जो 5 महाव्रत होते हैं, 5 महाव्रत is something जो 5 सिंस के अगेंस्ट होते हैं, मतलब जो 5 सिंस को छोड़ देते हैं, हिंसा, वायलेंस, और क्या, स्टीलिंग एंड और, हाँ, तो इसके अगेंस्ट जो 5 चीजें होती है उसको 5 महाव्रत कहते हैं। तो उसके साथ ये मुनिराज के लिए नेसेसरी होते हैं, और 5 महाव्रत के साथ पूज्यपाद आचार्य ने इंक्लूड किया रात्रि भोजन त्याग। जबकि नॉर्मल हम तुम जैसे लोग रात को भोजन नहीं करते, मुनिराज के लिए क्या ऐड करने की जरूरत थी? बट उसका इतना इंपॉर्टेंस लगा कि उन्होंने कहा गलती से भी कोई भटक ना जाए, इसलिए ही एडेड दैट थिंग। सो I was just letting you know the significance of रात्रि भोजन त्याग, और आचार्यों ने उसको कितना इंपॉर्टेंस दिया है। So that's the thing. Now the question arises, what do we include in रात्रि भोजन? भोजन में हम क्या इंक्लूड करें? रात्रि को भी छोड़ो और त्याग को भी छोड़ो, अभी हम देखते हैं भोजन टर्म, फूड में क्या इंक्लूड करना। आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि बहुत से लोग, मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट द थिंग्स वी ईट एट नाइट, एक्चुअली मोस्ट ऑफ अस एक्चुअली थिंक दैट ईटिंग ग्रेन्स एट नाइट इज रात्रि भोजन। हाँ, कि अन्न का दाना खाया, गेहूं खाया, चावल खाया, ये रात्रि भोजन है। मोस्ट ऑफ अस थिंक लाइक, हाँ, that all the edible things
consists of like ratri bhojan consists of all the edible things. Ratri bhojan nahi, bhojan consists of all the edible things. Why should we? Okay. So there's this message from owner. Why should we not eat at night? Why should we not eat at night? I'll be telling you the reasons. Yes. हाँ. तो भोजन में हम ले रहे थे. हाँ, तो बहुत लोगों को लगता है कि many people think that रात को खाना, like in any kind of things, खाना ये रात्रि भोजन है. And actually a few of us acknowledge the true meaning of Ratri Bhojan. Most of us don't even know what Ratri Bhojan means. In scriptures, the Ratri Bhojan has been divided into 4 parts. कहा है कि 4 types के भोजन होते हैं. कौन से? First one is khadya. Khadya is things that we eat, like to satiate our hunger, like proper food, roti, sabzi, dal, chawal, and all. So all these things are included in khadya. Then second bhed of bhojan is swadya. The things that actually don't satiate our hunger, we can't eat it as a food or a meal, but the things that one eats for taste. One takes for taste, like कुछ लोग सौंफ, फेनल सीड खाते हैं आफ्टर भोजन होने के बाद, और कुछ लोग क्लोव्स खाते हैं. तो उन सब चीजों को स्वाद्य में लिया. ऐसी चीजें जो भूख नहीं मिटाती, like don't satiate hunger, but are eaten by people. तो वो स्वाद्य. थर्ड भेद हुआ इसका लेय. लेय means the things like जो एक्चुअली ग्रेन्स में नहीं आते हैं और स्वाद्य में भी नहीं आते. The things like rabdi, kheer, etc. We can include these things in it. Rabdi, kheer, and dahi, yogurt, etc. तो ये सब चीजें लेय में आती है. और भोजन का 4th टाइप है पेय. पेय, like the things we drink, the drinkables like water, milk, etc., juices, etc. ये सब चीजें फूड में इंक्लूड की है. So until and unless we abandon consuming all these at night, we won't be Ratri Bhojan Tyagi in true sense. So to be a Ratri Bhojan Tyagi, many people think like they leave eating food at night, taking meals at night, and they think that they are Ratri Bhojan Tyagi. But until unless we leave all these things, until unless we leave even drinking water at night, we won't be Ratri Bhojan Tyagi. So in order to leave eating bhojan, like in order to reduce sins, we should do all this, follow all these things. It's so important. I understand that it's not like quick process for those who have been doing this since बचपन से, since childhood, और बहुत time हो गया है. It might be a slow process, but since it is the right thing, and since it is the only thing that one should do, if one doesn't want to earn pap, one should practice these things. One should not eat at night. Now, not only eat, as I have said, food के अंदर जो जो include होता है उन सबको छोड़ना. Even पानी भी नहीं रात को पी सकते हैं. अब इसके बाद देखते हैं एक और प्रथमान योग में. प्रथमान योग is history, Jain history. Okay, तो उसमें आता है एक इंसिडेंट. आपने राम लक्ष्मण का नाम तो सबने सुना होगा. You all must know Ram and Lakshman. लक्ष्मण जो थे राम के ब्रदर,
he was going to fight a war, he was leaving, so he was about to leave. तो वो अपनी वाइफ को कह रहे थे, वनमाला was his newly wed wife. वो उसको कह रहे थे, वनमाला, I am going to fight a war and I'll be back in a few time. So Vanmala said, no, please don't go. Don't leave me. We are just we have just got married. So stay with me for a while. He said that I'll return, Vanmala, don't worry. Vanmala said, I don't believe you. वो तो उन्होंने कहा, let me read that paragraph. हे वनमाले, मुझे जाने दो. मैं अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि होने के बाद तुम्हें लेने अवश्य आऊंगा. कि एक बार मेरा काम हो जाए, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा. आई विल कम बैक एंड टेक यू. मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर मैं अपने वचनों को पूरा न करूं तो जो दोष हिंसादी पापों को करने में लगता है वह दोष मुझे लगे. ऐसा किसने कहा? लक्ष्मण ने कहा. इस पर वनमाला ने बोला, ओके, लेकिन मुझे आपके आने में अभी भी थोड़ा संदेह है. आई एम डाउटफुल कि आप लौटोगे कि नहीं. तो आप ये प्रतिज्ञा कीजिए कि अगर मैं नहीं लौटूं तो मुझे रात्रि भोजन का पाप लगे. मतलब कितना सिग्निफिकेंट, मतलब सिग्निफिकेंट क्या कहना चाहिए, कितना ज्यादा पाप होगा रात्रि भोजन का, कि वनमाला सेड कि 5 पाप का तो छोड़ो, आप कहो कि रात्रि भोजन में जितना पाप लगता है वो मुझे लगे. तो इट पॉइंट्स आउट टू द, देखो कह नहीं सकते, लेकिन ये एक बोलने की पद्धति है, तो समझाने के लिए बोलते हैं ऐसा. तो इसके लिए रात्रि भोजन त्याग के लिए ये इंसिडेंट आता है. देयर इज वन मोर इंसिडेंट फ्रॉम प्रथमान योग. देयर वाज अ जैकल, सियाल, सियाल पता नहीं होगा, जैकल, जैकल वाइल्ड एनिमल. वो देयर वाज अ, हाँ, that jackal vowed in front of a Muniraj. Do you know that even animals can take vows and even they can do samyak darshan? So like even if they can't speak, but ये सब मन की बातें होती है. तो the jackal decided, जैसे भी उनको इतना ज्ञान हुआ उस jackal को, एक मुनिराज के सामने था वो jackal at that time, and he vowed not to eat at night, not to eat or drink anything at night. He did ratri bhojan tyag, that jackal. So what happened after some time, रात्रि भोजन त्याग तो किया उस जैकल ने. अब उसे एक दिन प्यास लगी. He felt thirsty. He went. There was a well. He went somewhere in village and there was a well. He well थी पहले के टाइम की, जिसमें मे बी ऐसा कुछ था, अंडरग्राउंड टाइप वेल थी थोड़ी. तो अंडरग्राउंड मतलब पहले डीप थी, तो पहले सीढ़ियां चढ़ के थोड़ा नीचे जाओ और इसके बाद वेल थी, ऐसा कुछ था. तो the jackal went there and he saw कि यहाँ तो अंधेरा है. He thought कि रात हो गई. He thought that it was night, and so he came back because he had vowed not to eat. Yes, Dishanji Shah says that. He knows this. Yes. Yes. Okay. So yes, yes. तो the jackal thought कि night हो गई है, so I can't consume things at night. He came back. वो underground गया था. He came back up and he found out that it was still day. It was a night. और वो तो नीचे underground था, इसलिए अंधेरा था, इसलिए उसे लग रहा था. He went again. Now since it is an animal, it doesn't know all these things. इतना logic नहीं होता, इतना ज्ञान नहीं होता, इतना knowledge नहीं होता. वो वापस गया and he saw that it was dark over there and he thought that it was night, and he kept on doing this. He was so thirsty. He was like so thirsty that he died of thirst. वो ऊपर नीचे करता रहा, लेकिन उसने पानी नहीं पिया नीचे जाके. क्यों? क्योंकि उसे बस ऐसा लगा. That jackal felt that it was night and he had vowed. उसकी मन की बातें थी ना, so he had vowed not to consume things at night, and he didn't drink water at night. A jackal, if a jackal can, why can't we?
we have all the resources, हम दिन में सब कर सकते हैं, और बॉडी ऐसा मशीन है, इसको जैसा करो वैसा होता है. पर्सनली पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट ड्रिंक वाटर एट नाइट. लेकिन मुझे प्यास नहीं लगती है रात को. दिन में इतना आदत हो जाती है बॉडी को, तो कुछ भी नहीं लगता है. थोड़े टाइम की प्रैक्टिस लगती है बस बॉडी को, बस. ओके, सो ना, एंड उसके फल में क्या हुआ, वो जैकल, दैट जैकल डाइड, और वो बहुत ही पुण्यशाली एंड बहुत ही रिच, आई थिंक विदेह क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा सेठ वगैरह कुछ हुआ उसके फल में. किसके फल में? रात्रि भोजन त्याग के फल में. महापुण्य, ऐसा आता है ग्रंथों में कि दैट जैकल बिकेम महापुण्यशाली प्रीतिंकर. प्रीतिंकर नाम का कोई सेठ या फिर राजा हुआ. ओके, now at night many microorganisms and organisms are found in profusion. The organisms that we can't even sometimes see, and sometimes they are visible, like many a times they are visible. People leave the lights on and we can see the mosquitoes and flies flying, and it is very much possible that if one consumes food at night, I am not saying कि ये जरूरी है, वो तो climatic conditions and all सब पे depend करता है, but still it is very much possible कि ऐसे जीव जो रात को उत्पन्न होते हैं, जो रात को पैदा होते हैं, वो भोजन में आके गिर सकते हैं और वो हमारे कंजम्पशन में आ सकते हैं. तो इससे बचने के लिए रात को भोजन नहीं ही करना चाहिए. सदासुख दास जी, अगेन आई एम कोटिंग हिम, उन्होंने लिखा है कि उनके सामने कोई है, क्वेश्चनर है, समवन इज क्वेश्चनिंग हिम कि ठीक है, रात को आरंभ नहीं करना चाहिए. आरंभ इज हिंसा. हम रात को वायलेंस नहीं करेंगे, हम रात को कुछ भी नहीं बनाएंगे, लेकिन दिन में बना हुआ लड्डू, पेड़ा एटसेट्रा खा सकते हैं. तो पंडित जी उत्तर देते हैं, पंडित जी आंसर्स दैट जो दिन में छोड़कर रात्रि को भोजन करता है, उसे महाआसक्ति रूप महाहिंसा का बंद होता है. आसक्ति इस उस चीज के बिना इतना क्या डेस्परेट हो खाने के लिए रात को, कि फिर उन्होंने, देखो आप आगे क्या लिखा है, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मैं पढ़ के दिखा रही हूँ. जैसे अन्न के ग्रास का अनुराग तथा मांस के ग्रास का अनुराग समान नहीं है, उसी प्रकार रात्रि भोजन का अनुराग तथा दिन के भोजन का अनुराग समान नहीं है. देखो किससे कंपेयर किया पंडित जी ने रात्रि भोजन को, कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आप कोई चीज खा रहे हैं जो खाने लायक है, लाइक वेजिटेरियंस कैन ईट दैट थिंग, फॉर एग्जाम्पल टेक वेजिटेबल्स, वो है भक्ष्य चीज है, और एक तरफ मांस है. अगर आप उन दोनों में से, मीट है, उन दोनों में से अगर आप किसी को खाते हैं, अगर आप बीफ खाएंगे, मीट खाएंगे, तो आपकी निंदा होगी, भले ही आपने अलग से उस एनिमल को नहीं मारा हो, राइट? इवन इफ यू हैवंट किल्ड दैट एनिमल intentionally. ऐसा भी हो सकता है that you find some animal died on the road. Will you eat? This is a simple question. Will you eat the meat? In that case, वो already मरा हुआ था. You have done no other हिंसा. नहीं ना, वो नहीं खाएंगे ना आप. तो वैसे ही क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि it's not considered good. It's not, और consider good की अपेक्षा जैसा कि आसक्ति है उसमें कितनी, कि ठीक है हमें जिंदा नहीं मिला तो हमें मरा मिला तो हम वो खाएंगे. एक तो इंसान वहां मर रहा है और तुम्हें खाने की पड़ी है, राइट? तो ये आसक्ति का प्रतीक होता है कि कितनी हम उस पे, उसके लिए कितने उसके कितने डिपेंडेंट है उस चीज पे हम, और हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं एंड ऑल. तो और इट्स ऑन आवर माइंड. तो वैसे ही उसी को कंपेयर करके बोला है. Why is it not good? I couldn't understand your question, but can we save that question for question answer session? Yes, we will. I'll deal with it afterwards. You can explain your question to me. I was saying
तो शाकाहार, वैसे ही शाकाहार की अपेक्षा मांसाहार नहीं करते, शाकाहार को ऑप्ट करते हैं। वैसे ही इफ यू हैव टू ऑप्शंस, दिन में भोजन करना, रात में भोजन करना, वन गोज फॉर दिन में भोजन करना, क्योंकि रात को भोजन करने में गृद्धता है, आसक्ति है, दिखाता है कि आप भोजन के लिए टू ईट डे एंड नाइट, अगर आप दिन में भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, how will you take out time for all other things? How will you take out time for dharma and all? Now, अब हम देखते हैं रात को हमें plenty of time होता है, we can sit, we can do dharma charcha. It won't be possible if we eat at night and engage in all that stuff. ठीक है? तो इस व्यू पॉइंट से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी रात को कुछ बताती हूँ मैं आपको कि ये चीजें नहीं करना। क्या one should not consume food cooked at night. रात को बना हुआ भोजन रात में नहीं खाना। one should not eat food cooked at night. Secondly, one should not consume food cooked in day at night. दिन में बना हुआ भोजन रात को नहीं खाना, रात को बना हुआ भोजन रात को नहीं खाना, दिन में बना हुआ भोजन रात को नहीं खाना। Third point, one should not eat food cooked at night in day. रात को बना हुआ भोजन दिन में भी नहीं खाना। तो फिर कहोगे कि रात को हम बना के रख लेते हैं, हम कल दिन में खा लेंगे, आप खाने को नहीं, you can't even make food at night. So ये 3 पॉइंट ध्यान में देने लायक है। एंड इसीलिए अगर वापस से ये भी एक वाव अपन लेते हैं तो भी हम बहुत सारे पापों से बच जाते हैं भी। जैसे कि कल हमने बताया छने हुए पानी पीने से हम मार्केट में अभक्ष्य प्रोडक्ट्स से बचते हैं, वैसे ही हम रात्रि भोजन त्याग से it keeps us away from all these market made things, क्योंकि we never know। और ऐसा have you seen any such place where दिन में ही बनाया जाता है, रात को नहीं बनाया जाता मार्केट? Can you assure that कोई ऐसी फैक्ट्री है जो दिन ढलने के पहले ही बंद कर देगी, दिन उगने के बाद ही शुरू करेगी? No. So इससे भी हम बच जाते हैं। Now let us see what science has to say in this matter. Okay, only host can share in this meeting. I wanted to share this. Can you a photo? Okay, see, I'll continue with the topic. Science. Let's see what science has to say in this matter. There are various sources of light, as we know. You can share it now. Yeah, okay. Let me try now. कहाँ हुआ भाई ट्रांसफर? Okay. I'm unable to find it right now actually. देखती हूँ मैं. Oh, not this one. Okay. मैं देखती हूँ, बोलती हूँ कि there are various sources of light, as we know कि जैसे we get light from okay, चलो ठीक है, अभी छोड़ो। We get light from sun, we get light from moon, and we get light from कोई भी other source, candle, and if we light any such thing, and we get light from electric bulbs, CFLs, and all other things, right? These all are the sources of light. We are looking at the scientific point of view, right? Now, if
we know that मुझे यही फोटो शेयर करना था कि do you know that if we let the sunlight pass through a prism is like the triangular thing, yeah, so if we let it pass through the prism, it scatters in 7 and it becomes a spectrum of 7. तो विबग्योर जो रेनबो कलर्स होते हैं they appear, and इसके अलावा क्या होता है, इन 7 कलर्स के अलावा भी 2 चीजें होती है. So the light actually get dispersed into 9. क्या होता है, जो विबग्योर वॉयलेट रहता है ना, उसके नीचे रहता है अल्ट्रावायलेट, जो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होता. एक होता है अल्ट्रावायलेट एंड एक होता है जो रेड कलर रहता है एट द एंड, ऊपर के एंड पे, वहां पर रहता है इंफ्रारेड. अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड, ये वर्ड्स भी कॉमनली यूज होते हैं मेडिकल टर्म्स में एंड ऑल. तो मैं तो अभी इसकी बात कर रही हूँ कि कैसे कहाँ होते हैं वो. तो ये इनविजिबल टू आवर आईज होते हैं बट इट इज साइंटिफिकली प्रूवन. तो ये क्या करते हैं, ये 2 चीजें इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट, दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. ये भोजन को पचाने में, डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं हमारी. जबकि अगर सेम ये लाइट हमने सनलाइट पास की जिसके थ्रू 9 में डिस्पर्स हुआ, नाउ अब यही लाइट आप लो इलेक्ट्रिक लाइट जो आर्टिफिशियल लाइट वगैरह होती है और उसको डिस्पर्स करो, तो वो या तो 9 में डिस्पर्स होगी नहीं, इट वोंट गेट डिस्पर्स इनटू 9, एंड इवन इफ इट डज, जो एफिशिएंसी होगी ना अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड की, इट वुड बी लेस, बहुत कम होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ सनलाइट. तो ये भी लाइक आई कलेक्टेड एक्चुअली, ये सब मैं जो बोल रही हूँ, आई रेड दिस आर्टिकल about like this scientific why scientifically it is wrong to eat at night. It was there in Sanmati Sandesh, a magazine, अब जो नहीं आती है बट पहले थी. So सन्मति संदेश के आधार पर बोल रही हूँ, and I have confirmed these facts from Google and Wikipedia. You can do it as well if you want to. So जो इंटेंसिटी रहती है इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट की, वो इलेक्ट्रिक लाइट में ज्यादा नहीं रहती है एज कंपेयर टू सनलाइट. तो सनलाइट में उतनी पावर होती है कि इट कैन मेक दैट फूड डाइजेस्ट, लाइक वो ब्रेक डाउन कर सकता है उस फूड को और अच्छे से डाइजेस्ट करा सकता है. वेयर इलेक्ट्रिक लाइट में इतनी पावर का इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट नहीं होता है कि हमारा फूड डाइजेस्ट हो सके. इट इज अ वेल नोन फैक्ट. तो इस एंगल से भी ये, सिंस डाइजेशन ऑफ फूड रात को प्रॉपरली, देयर इज नो सनलाइट एट नाइट, एंड पीपल से दैट पहले के जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी तो क्या बोलना, ये लाइट बल्ब्स वगैरह नहीं थे, इसके लिए आचार्यों ने लिखा स्क्रिप्चर्स में कि रात को भोजन नहीं करना. बट नाउ दैट वी हैव ऑल दोस थिंग्स, वी कैन कंज्यूम फूड एट नाइट. सो उसका ये रीजन है साइंटिफिक कि क्यों हमको ये रात को कंज्यूम नहीं करना चाहिए. प्लस धार्मिक तो बोल ही दिया कि रात को भोजन करने में गृद्धता अधिक होती है कि आप वो लाइट अप करोगे. और डू यू नो दैट लाइट इन इटसेल्फ, इसमें कितना वायलेंस होता है. देयर इज लॉट ऑफ वायलेंस इन द मेकिंग ऑफ पावर, लाइक इन द पावर जनरेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो उसमें जब ऑलरेडी इतना वायलेंस हो रहा है, उसको हम फूड के लिए यूज करें, जो चीज हम दिन में आराम से कर सकते हैं और करना चाहिए, उसको हम रात के लिए छोड़ दें, इट्स नॉट thoughtful. So we shouldn't do this. And science has also, yes, हाँ, effectivity of digestion तो affect होती ही है, and also sleeping patterns disturb होते हैं रात को food consume करने से. And scientific studies have proved that it has certain effect on behavior, like psychological behavior of a person, and
Yes, and on memory, it has effect on memory. The timings of consuming food, it has certain effects on your memory and your behavior. So and it has been proved that रात को खाना अच्छा नहीं होता है. Now science also says that, now let us talk about refraction. फिर मैं इसको relate करूंगी आगे. We all know what refraction is, कि कोई चीज जहां पर है और रिफ्रैक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर उसका रीजन हो सकता है, और उसका रीजन बहुत सारी चीजें हो सकती है, लाइक एयर पार्टिकल्स एंड ऑल. तो रिफ्रैक्ट होती है चीज तो वो उसके ओरिजिनल लोकेशन से अलग लोकेशन पे दिखाई देती है, जबकि ऐसा होता नहीं है. इट सीम्स लाइक इट इज समवेयर एल्स whereas it is elsewhere. सो ये रिफ्रैक्शन का थ्योरी यहाँ काम करता है, where कि 48 जब सनराइज होता है, हमें जब दिखता है कि सनराइज हो गया है, सनराइज एक्चुअली होता है उसके 48 मिनट्स के बाद. सनराइजेस आफ्टर 48 मिनट्स of, like, sunrise, we can see the sunlight is visible to us 48 minutes before the sun actually rises. So and why does it happen? It happens because of refraction. And same is the case with sunset. We can see the sunlight 48 minutes tak after the sun sets. So we think that it's day, but actually it's not even scientifically. The sun hasn't grown yet. So called dusk and dawn in English, right? Before dusk and dawn. So what was I saying? तो ये 48 मिनट्स का थ्योरी है. अब देखो, even some scientists say that ये जो पीरियड होता है dusk and dawn, जब पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ होता है सन, it's just visible to our eyes, whereas it is not so. Food shouldn't be consumed because same problem arises कि ultraviolet and infrared are not at work, and hence the food won't be digested. So all the work has to be done when the sun has properly grown, like properly risen. So yes, and yeah, so that is why even in our scriptures it is written that in Lati Sanhita, let us take for example, ये चरणानियों का ग्रंथ है. It deals with what we should eat and how we should eat and how our behavior should be. Lati Sanhita. In that scripture, Acharya has said that food shouldn't be consumed 48 minutes after, what should I say? Like उस dusk और dawn के period में food shouldn't be consumed, and 48 minutes after the sun rises and 48 minutes before the sun sets, food shouldn't be consumed. Also, मैं आपको एक जैनेतर ग्रंथ का आधार देना चाहूंगी. जैनेतर नॉन-जैन ग्रंथ है, एक मार्कंडेय पुराण करके है. इट्स लाइक श्रावक आचार जैसे हम में होते हैं, which deal in what we should eat and what we should not. Non-Jains का भी ऐसा एक है. Why do I quote these अजैन ग्रंथs? The reason behind it is, जिस चीज को अजैन भी मानते हैं and वो भी ठीक नहीं समझते, and even after that if we do those things, it's shameful, right? So उनका ये है, छंद है, वासरस्य मुखे चान्ते विमुच्य घटिका द्वयम. क्या वासर is day and mukh here stands for the beginning of day and the ant is end of the day. तो दिन के स्टार्टिंग में और दिन के एंड में विमुच्य छोड़ के क्या दो घटिका is 1 घटिका is 24 minutes, 2 घटिकास are 48 minutes.
तो 2 घटिका को छोड़कर भोजन करना चाहिए। मतलब दिन में स्टार्टिंग के 48 मिनट्स और एंड के 48 मिनट्स, दिन उगने के बाद की बात है ये। भोजन, फूड शुडंट बी कंज्यूम्ड। अब इसका और एक रीजन ये भी है, देखो अगर हम फूड कंज्यूम करते हैं, इन केस एक इमेजिन करो, अगर हम फूड कंज्यूम करते हैं बिल्कुल रात होने तक, हाँ सूर्यास्त तक, नॉट 48 मिनट्स बिफोर, सूर्यास्त तक, तो when will you wash the utensils? When will the utensils be washed? When will the vessels be washed? You say that you have said ki, and in scriptures it has been written that you can eat, आप खा सकते हो इतने इतने टाइम तक। आपने यूटेंसिल्स की तो कोई बात नहीं की, तो हम रात को यूटेंसिल्स धोते रहेंगे when we have free time? No, रात को ये सारा जो किचन का काम है, चौके का काम है, इट शुड बी ओवर बाय सनसेट। तो ये सब तब तक खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर आप 48 मिनट्स बिफोर आपका भोजन खत्म करते हैं, इफ ऑल योर फैमिली मेंबर्स हैव फिनिश्ड ईटिंग 48 मिनट्स बिफोर द सनसेट, आप इजीली सनसेट तक you can do all the vessels, like you can wash all the vessels, you can do the stuff, like you can arrange the things in kitchen, so it would be easier, और आपका सनसेट तक पूरा काम हो जाएगा। तो कितना प्रॉपर है ये कि आप 48 मिनट्स पहले इस सब को खत्म कर दो, भोजन वगैरह, एंड आफ्टर दैट जो बाकी के काम बचते हैं वो करो। तो रात के लिए कोई भी काम नहीं बचेगा, और इसलिए कोई सिन, कोई भी पाप नहीं होगा। ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं ग्रंथों में, ऐसा नहीं है मन से बोल रहे हैं, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है ग्रंथों में कि रात को कुछ काम भी नहीं करना है। अरे काम का तो छोड़ो, सोचने का भी मना किया है। डू यू नो कि सोचने का मतलब भोजन के बारे में सोचने का। I'll deal with your question afterwards, huh? So I was saying, in many scriptures it has been written कि scriptures का छोड़ो अभी एक मिनट के लिए। Do you know that Muniraj monks, they don't talk at night? वो रात को बात भी नहीं करते हैं। They don't even walk at night. वो रात को चलते भी नहीं है, वो रात को बात भी नहीं करते हैं। They don't move, they make no movement. बहुत मजबूरी में एक खाद कुछ मूवमेंट करना पड़ा, so they do, otherwise वो कोई मूवमेंट, किसी टाइप का मूवमेंट नहीं करते। They keep their body stiff, they don't talk. So they don't even talk. So if we, and it has been advised for laymen, for grahastha to practice the same. Scriptures say that we, even laymen, even we shouldn't do these things at night, even we shouldn't talk at night, even we shouldn't walk at night. But today, if it's not practicable for us, if we think it's not practicable for us, and if we think there are necessary things to do, all we can do, at least we can leave consuming food at night. कम से कम इतना कर सकते हैं। अनम्यूट, मेरा कितनी देर से म्यूटेड है? Just now. Okay, fine. So it is winter, cloudy. मैं आप सबके questions बाद में deal करूंगी. I've read the question. Once I'm done doing this, I'll certainly answer to your questions, right? क्या होता है, मेरा फ्लो टूट जाता है, so I get diverted, मुझे सोचना पड़ता है, तो इसके लिए बाद में आप पूछ सकते हैं, there will be enough time. So I was saying, कुछ बताओ ना। हाँ, रात्रि में गमन भी नहीं करना। तो अगर हम इतना नहीं कर सकते हैं,
तो एटलीस्ट ऑल वी कैन डू इज हम रात को भोजन तो नहीं करें जिसमें इतनी हिंसा होती है. बाकी अगर मजबूरी में इफ वी हैव टू टॉक, इफ वी हैव टू वॉक, we can do that. Like, doesn't scriptures don't give us the license, it's us who are making the ways out, but still वो जब वो ठीक नहीं है तो रात को भोजन का तो सोचना ही नहीं चाहिए. well रात्रि भोजन को अतिचार में लिया है. अतिचार में किसके लिया है? जो व्रतीज रहते हैं ना, इवन इफ दे थिंक अबाउट कंज्यूमिंग फूड एट नाइट, लाइक उन्हें अगर ऐसा लगता भी है कि भूख लग रही है, लेकिन अपना तो रात्रि भोजन का त्याग है, खाने की तो दूर की छोड़ो, बट अगर ऐसा लगता भी है तो भी इट इज कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक एंड इट इज considered as a atichar, and it shouldn't be done. So that's what it is. Ratri bhojan has some ill effects on health too. A study by University of, I don't remember, it confirms that eating at night can lead to several diseases like heart diseases, and can lead to obesity, and can lead to increased sugar levels, etc. And yes, the word I was looking for actually has the meal has far-reaching effects on brain physiology and behavior. So that's what the university says. I couldn't remember that word at that time. So that's what it is. Brain physiology and behavior. It has effects on it, adverse effects on our brain. Now, Ayurveda, you all must know Ayurveda. It says that एक नाभि कमल होता है. नाभि कमल is the thing that is inside our stomach actually, which helps in digestion of food. It helps in digestion of food. जो नाभि कमल होता है, वो कहते हैं कि it's the size of a kamal. Kamal, you know, lotus. तो वो जो रहता है वो कमल जैसा ही फंक्शन करता है. It blooms at daytime, नाभि कमल, हाँ, and it shrinks at night. So रात को दिन में if we put something in it, it will be digested since it is open and it can help digest the food. But रात को it gets closed, that नाभि कमल, and that's why जब close हो जाएगा, so how will your food be digested properly? तो इसके लिए रात को food, आयुर्वेदा भी कहता है कि रात को food shouldn't be consumed. Also वापस देखते हैं एक नॉन-जैन ग्रंथ का आधार. अस्तंगते दिवाना थे आपो रुधिर मुच्यते अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिना. आपको पूरा समझ नहीं आया होगा, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती संस्कृत पूरा समझ में आएगा, लेकिन आपको कुछ वर्ड समझ में आए. अन्नम मांस समम प्रोक्तम, अन्न मांस साथ में आया. ये let me explain you what it is. Again from Markandeya Puran, there was this well-known acharya in non-Jains, in Hindus, Markandeya Rishi. He said that रात को पानी पीना, आपो, आप stands for pani, आप is actually up stands for pani, but apah, it's in Sanskrit. So apah rudhira uchyate, rudhir is blood. तो रात को पानी पीना ब्लड पीने के बराबर है, खून पीने के बराबर है. एंड अन्न मांस समम प्रोक्तम, और रात को अन्न खाना, इसको मांस खाने समान बताया. किसने? मार्कंडेय ऋषि ने. तो इवन नॉन जैन्स बिलीव this thing. Once the sun sets, the things become non-consumable. We shouldn't consume them at night. We are not some nocturnal animals to eat things at night. It's what they do, and they aren't to be blamed for that. They're animals. It's how their body works. They have no other way out. We have. Actually, our body favors the condition like of day. Our body क्या favor करती है, लेकिन
the daylight favors the conditions of our body. तो हमें तो यही ठीक है, convenient है कि हम दिन में भोजन करें, रात के लिए तो हमें हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं बहुत. In scripture Mahabharat, I should finish. Nodakam api patavyam. Okay, this is from scripture Mahabharat. Nodakam api patavyam ratrau apara yudhishthira. कि रात को युधिष्ठिर, इसमें अर्जुन जो है वो सॉरी श्री कृष्ण, अकॉर्डिंग टू महाभारत, श्री कृष्ण जो है वो उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर को. वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, रात को न उदकम अपि पातव्यम, रात को पानी भी पीना योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं. उदक इस पानी, तो रात को पानी भी पीना योग्य नहीं है, रात को पानी भी नहीं पीना चाहिए. भोजन की तो क्या बात, फिर तो बहुत ही बड़ी बात हो गई. एंड देयर इज दिस लाइन कि चत्वारी नरक द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम. नरक के 4 द्वार माने हैं उन लोगों ने, उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है लाइक वुमनाइजिंग एंड ईटिंग, actually yes, eating certain things. जमीन कंद एक्चुअली उन्होंने लिए हैं. एंड देयर इज वन मोर थिंग, उसमें बोला कि 4 ये जो नरक के द्वार है, इसमें प्रथमम रात्रि भोजनम, इसमें पहला द्वार कौन सा है, पहला गेट वे टू हेल को क्या है, इट इज रात्रि भोजन. रात्रि भोजन को उन्होंने पहला नरक का द्वार बोला. तो it should be abandoned. These were some references from Ajahn Granths and Jain Granths. There are many more actually. At present मेरे पास बहुत सारे आधार हैं अजैन और जैन ग्रंथ के, बट इन सब को बोल के नहीं दिखा सकते. ऑलमोस्ट सिमिलर कहते हैं ये सब, क्या कि रात को भोजन करना ये बहुत ही पाप का काम है एंड इट शुडंट बी डन. और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट गुड टू कंज्यूम फूड एट नाइट. Not even Ayurveda permits, not even science permits, not even dharma permits, not even other religions permit, and yeah, no one does. Who does then? It's us who think कि वो ठीक है, लेकिन नहीं है वो ठीक. तो our basic principle is live and let live, जियो और जीने दो. और रात को खाना खाने में बहुत वायलेंस होता है, पानी भी पीने में बहुत वायलेंस होता है. तो हमें अपने साथ साथ we love our lives, that's true, but other organisms love their lives as well. They want to live as well. Let us give them their right. Let us let them live. Okay, so we should not, at least if we can't leave it completely, we shouldn't do things for our enjoyment, or we shouldn't do things like we should make sure that violence doesn't happen because of our carelessness. So we should make sure of that. And जैसा कि कल कहा था कि these are ratri bhojan and all these are the things that happen. These things give us the license that you can proceed on the marg of moksha, but it won't take you to moksha. So what takes you to moksha is realization of self and सात तत्व 9 पदार्थों का ज्ञान. So that's what it is. It's आत्मा का ज्ञान. So we should do that and हम सब मोक्ष प्राप्त करें. So yes, that was it. Now the questions. Okay, should I read them? There was this question from Galaxy Tab S2, right? In winter, it is cloudy 3 months of the year, and we don't see the sun at daytime. What happens then as to bhojan? Right, but in that case, like we can't starve for 3 months and we won't survive if we do so. So in that case,
अगर ऐसा कुछ बहुत अंधेरा है तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए कि भोजन करने का, अगर जल्दी अंधेरा हो जाता है तो। लेकिन अगर मामूली डे लाइट आ रही है, दिन जैसा लग रहा है, तो वी कैन कंज्यूम फूड एट डे टाइम। और क्या कहना था मुझे? हाँ, क्या? हाँ, अल्ट्रावायलेट रेस और इंफ्रारेड होते हैं, वो ढक जाते हैं, लेकिन जो वर्च्यू होता है सन के प्रेजेंस का वो रहता है। सो फूड कैन बी कंज्यूम्ड। ओके, बट लेकिन ऐसा पता है मुनिराज वगैरह का होता है थोड़ा, कि अगर ज्यादा रात जैसी लगने लगती है, दिखने लगती है, दे डोंट कंज्यूम फूड। सो not only Muniraj, only also the Shravaks do this. रात जैसा होने लगे, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत है, सन नहीं दिख रहा है लेकिन थोड़ा डे लाइट जैसा है, तो वी कैन कंज्यूम फूड, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। Now there was some other question from Heetal ji. Okay, no. Oh, where did it go? If we boil water, इसको मैं बाद में देखती हूँ, ये it isn't related to the topic. Why should be the Jain order Zamikan त्याग और रात्रि त्याग? The question is कि पहले क्या, कौन सा त्याग होना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग या जमीकन त्याग? अच्छा अच्छा, व्हाट शुड बी द ऑर्डर? रात्रि पहले जमीन कन का त्याग या रात्रि भोजन त्याग? जिस हिसाब से 8 मूल गुण में लिया है, उसको सबको एक साथ छोड़ना चाहिए। रात्रि भोजन, there is no such order. I don't see any order, like I don't see any logic. अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ तो नो, ऐसा कुछ भी ग्रंथों में नहीं आता है। Question arises because कहीं पढ़ा था कि रात्रि भोजन में त्रस की हिंसा होगी ज्यादा, और जमीकन में तो केवल एक खावर की हिंसा होगी, हाँ, एक इंद्रिय की, जमीन कन में। तो और उस वजह से रात्रि भोजन रात्रि भोजन त्याग इज मोर इम्पोर्टेंट या जमीकन का त्याग? रात्रि भोजन में त्रस की भी हिंसा होगी तो रात्रि भोजन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जमीन का त्याग एक तो because what happens is कि most of us believe कि आलू वगैरह छोड़ दिया लेकिन रात को अभी भी खाते हैं, तो इस वजह से I would wanted to know what is more important, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है तो नहीं, ऐसा कुछ है तो नहीं, क्योंकि दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ, रात को तरस का घात होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसको तो स्ट्रेट अवे छोड़ना ही चाहिए, राइट अवे छोड़ देना चाहिए रात्रि भोजन को। एंड आप जैसा कि कह रहे हो कि एक इंद्रिय का घात होता है, इसलिए लोग उसको कहते हैं कि पहले रात्रि भोजन छोड़ो और फिर ये, तो जो जमीन कंद वगैरह होते हैं इनमें भी अनंत कायिक का घात होता है, नॉर्मल एकेंद्रिय का नहीं। नॉर्मल एकेंद्रिय को तो देखो, हम लौकी वगैरह खा रहे हैं ना, उसमें भी घात हो रहा है कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन ये बात सेम नहीं है। एकेंद्रिय एकेंद्रिय में भी फर्क है, ये अनंत कायिक है, इनके आधार से इन्फिनिट जीव रह रहे हैं, तो आई डोंट सी कि कुछ ऑर्डर होना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए। 5 अभक्ष्य बताए हैं, त्रसघात, बहुघात, तो दोनों ही एक साथ ही बताए हैं। तो त्रसघात हो गया रात्रि भोजन, बहुघात हो गया जमीन कंद का त्याग, तो दोनों को छोड़ना चाहिए। आप अब मैं अगर आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, 5 पाप में कौन सा पाप पहले छोड़ना चाहिए? जैसे हम झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने में तो कुछ हिंसा नहीं हो रही है डायरेक्टली, मैं अपने पेरेंट्स को जाके झूठ बोलती हूँ तो हिंसा तो नहीं हो रही है डायरेक्टली, जबकि मैं हिंसा करती हूँ तो डायरेक्टली समवन गेट्स किल्ड। नो, देयर इज नो सच ऑर्डर। सो ओके, anything else, like yes, I think I got a question. Here in UK during winter, daylight is very less and it becomes dark at 3:30 to 4. So if it becomes dark and if it is like
रात जैसा हो जाता है तो आप पहले ही कंज्यूम कीजिए फूड, ज्यादा कीजिए ताकि आपको भूख ना लगे उतने टाइम तक, बट नहीं, इट्स नॉट राइट टू कंज्यूम फूड आफ्टर दैट। और अगर अगर आपके यहाँ दिन बहुत ज्यादा टाइम का होता है, ऐसा भी होता ही होगा ना कि लाइक नॉर्मल टाइम से ज्यादा होता होगा, तो आप ज्यादा टाइम तक खा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट सनलाइट। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा टाइम तक है तब एंजॉय कीजिए, कम टाइम तक है तब तक पहले निपटा लीजिए। So yes, that's what should be done. Does anybody else have any more questions? Any more questions related to this this topic? I have got some other question related to milk. So okay, are we done? तो मिल्क का ऐसा है कि सो मिल्क का ऐसा है पाश्चराइज क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज कि मिल्क जो रहता है वो पाश्चराइज्ड मिल्क ड्रिंकेबल है क्या और क्यों? क्योंकि और वैसे भी मिल्क जो रहता है, आई थिंक ये है क्वेश्चन कि मिल्क लेते हैं काउस से और फिर उनको हार्म करते हैं काउस को, तो उसका पाप हमें लगता है एंड ऑल। और विदाउट पाश्चराइज्ड अगर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो क्या करना? आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन, राइट? am I understanding it correctly? So sorry, my question was not about pasteurization. Yes. It was about the harm caused to the animals when they are used for milk. Okay. So the thing is, एक सीधी बात है जिसमें मतलब जो रूल्स है स्क्रिप्चर्स के, उसमें मैं बताऊंगी सारी बातें क्लियर हो जाएगी, मतलब बाकी किसी क्वेश्चन के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। मेन थिंग है आप मिल्क ले रहे हैं, इट शुड बी, पहली बात कि आजकल जो डेयरीज एंड ऑल है तो ये सब पीना ही नहीं चाहिए मिल्क। क्यों? क्योंकि जो मिल्क है वो काव से डायरेक्टली निकाला हुआ होना चाहिए हमारे सामने। हाँ, और जो काव रहती है, अब जो जहां से मिल्क निकलता है काव का, तो वहीं से उसका जो बछड़ा रहता है, लाइक काफ रहता है, उसने भी वहीं से पानी वो दूध पिया है। तो ऑल दैट थिंग, दैट सलाइवा एंड ऑल दैट गेट्स मिक्स्ड। हमें नहीं पता है कि वो जो दूध निकालने वाला है उसने उसको धोया है नहीं धोया है एंड कैसे हाथ लगे हैं, तो वी डोंट नो ऑल दैट अबाउट ऑल दैट। तो वो अनूप से भी अभक्ष हो जाएगा। इसलिए उससे बचने के लिए सबसे पहली चीज तो हमें अपने पानी से, छने हुए पानी से, दैट प्लेस शुड बी वॉश्ड एंड आफ्टर दैट दूध निकालना चाहिए। दूध निकालने के बाद 48 मिनट्स के अंदर अंदर दूध निकला उसके तब से 48 मिनट शुरू हो जाएंगे, उसके 48 मिनट्स के अंदर अंदर आपको वो मिल्क बॉईल कर लेना है। अगर वो बॉईल नहीं होता है तो उसमें आता है स्क्रिप्चर्स में कि जैसे भैंस का दूध है, हाँ, बफेलो का दूध है या फिर काव का दूध है, तो उसमें उसी साइज के, जैसे काव का दूध है तो काव के ही साइज मतलब उसी जाति के, उसी टाइप के इनविजिबल जीव, अपर्याप्त जीव, उसी शेप के छोटे छोटे वो पैदा होने लग जाएंगे। देखो, इसमें हम ज्यादा साइंटिफिक और ये सब चीजें नहीं देख सकते। सम थिंग्स हैव जस्ट टू बी लाइक, माननी चाहिए कुछ चीजें भगवान ने बोली है और हर चीज को क्वेश्चन करके नहीं चलता। तो हाँ, तो ये चीजों में तुरंत 48 मिनट्स के बाद जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, वो अमर्यादित हो जाता है। इसलिए 48 मिनट्स के पहले इट शुड बी कंप्लीटली बॉइल्ड। तो क्या होगा उससे, उसकी मर्यादा 24 आवर्स तक एक्सटेंड हो जाएगी। जैसे हम पानी को करते हैं ना, अच्छा पानी को हम जितना बॉईल करते हैं, दूध को तो क्या तो बॉईल करेंगे, बस उसको
स्पिल ना हो जाए, वो उफन ना जाए, तब तक करो बॉयल पूरा तरह से, जितना ज्यादा कर सकते हैं। उसकी मर्यादा 24 आवर्स की होती है, उसके पहले बाद में कुछ नहीं। तो 48 मिनट्स। तो अब आती है डेयरी की बात, और बाकी सब चीजें तो ऐसे ही हट जाती है, क्योंकि कौन तो डेयरी में 48 मिनट्स में लाने लगा। बॉइलिंग विद इन 48 मिनट्स इज नॉट प्रैक्टिकल इन यूके। सो क्या, व्हाट शुड आई से? देखो, प्रैक्टिकल तो ऐसा है, आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, ये एक पहले का है, देन डोंट ड्रिंक, यस देन डोंट ड्रिंक। एंड अगर आपको चाहिए ही है तो फिर आप सोयाबीन मिल्क और बादाम का मिल्क, एंड देयर आर आर्टिफिशियल वेज टू, जैसे मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क, उसको ऑप्ट कर सकते हैं आप। बाकी नहीं, फिर पीना नहीं चाहिए। ऐसा ही है। एक पूछा किसी ने, साधर मी ने बहुत पहले एक विद्वान से प्रश्न, ये लिखा हुआ है कि अलास्का जैसे कंट्रीज में मीट के बिना सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, वाइन के बिना सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करें? अब आप बताओ। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते ना कि फिर खाओ, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। ऐसे तो फिर वो तो जगह का फॉल्ट है। तो अब कुछ नहीं कर सकते, देन डोंट ड्रिंक, राइट? अगर 14 मिनट्स के पॉसिबल, बीच में पॉसिबल नहीं है तो हाँ, अनकंडीशनली इसको फॉलो करना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? Yes. Fine. Are we done? Anybody else has any more questions? Okay, then we can conclude here. Mukti ji, hold on. Yes. So, one Wait, second. huh. There, I Yes. still about सूंठ કે सूंठ અને હળદર ground ઈ ખવાય કે નહીં? Halad and Sunt. You have a question about Halad and Sunt, right? ये underground होती है, ये खानी चाहिए कि नहीं? See, this topic actually it's a vast topic and it demands time. मैं 5 मिनट्स में क्या एक्सप्लेन करूं, मैं तब भी आपको थोड़ा बताऊंगी, बट इसके लिए तो एक अलग से सेशन ही अरेंज करो तो वही ठीक है, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि इतने सारी चीजें है ना। देखो, हळद एंड सूंठ जो है वो अंडरग्राउंड है, तो खानी नहीं चाहिए, अनंतकायिक है, बट इट हैज सम क्वालिटीज। कुछ क्वालिटीज है कि लाइक इट क्योर्स सम डिसीजेस, राइट? तो उस केस में स्क्रिप्चर्स में ऐसा दिया है कि उन केसेस में हलद एंड सूंठ का यूज कर सकते हैं बहुत मजबूरी में। सूखी हुई हळद एंड सूंठ, राइट? सूखी हुई, जब वो वुड जैसी हो गई हो तो Yes. वो। बाकी तो हाँ, तो इसको नहीं कर सकते। अब रत्नगंज शावकशर वगैरह में भी, उसकी टीका में भी आता है हळद का, तो उसका इतना ही समझना। उसमें ऐसा अलग से फुटनोट भी है कि उसको बहुत मजबूरी में ले सकते हैं। बाकी व्रती त्यागी तो जो होते हैं ना, वो नहीं लेते हैं हळद सूंठ को, तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन स्क्रिप्चर्स में तो यहाँ तक आता है कि इवन मुनिराज बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में ले सकते हैं, उनके लिए भी अलाउ किया है वो चीज, लेकिन प्रेफरेबली लेनी नहीं चाहिए। वो किस केस में कहा, एक्चुअली जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, और अगर आप आज के डेट में देखो तो आप एंटीबायोटिक्स सबके लिए दौड़ रहे हैं, अगर उसके लिए ऑल्टरनेटिव के रूप में यूज हो सकता है हळद सूंठ, तो ठीक है। बाकी टेस्ट एंड ऑल कलर टेस्ट के लिए तो बिल्कुल गलत है, सो इट शुडंट बी यूज्ड इन दैट केस। So, daily use in cooking, we shouldn't be using daily use in cooking. No. We shouldn't be use it in daily use in cooking. बहुत ही वो हो तो अदरक भी नहीं, अदरक जिंजर भी नहीं यूज कर सकते। बिल्कुल सूखी हुई, बिल्कुल सौंठ जो रहती है ना, जो वुड जैसी लगे हमारे हाथ को, ऐसी हळद और सूंठ इसको कंज्यूम कर सकते। वो भी किन केसेस में बता दिया आपको, कि बहुत बीमार हो और जैसे सर्दी जुकाम में यूज हो जाता है, उसके भी दूसरे अल्टरनेटिव्स है। तो अगर वो अपन करके इससे बच सकते हैं लौंग वगैरह यूज करके, तो वो भी नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर कुछ है तो फिर बीमारी वगैरह में उतना छूट रख सकते हैं, बाकी नहीं, डेली में तो बिल्कुल नहीं। उसमें तो बिल्कुल आलू प्याज की जितना पाप बताया है, अनंत कायिक है वो।
Mukti Ben. Yes. Mira. Yes. We can't hear you, Nirav. Mukti ji, thank you very much for your 2 sessions. आपने English में भी बहुत कोशिश की, so thank you very much for that, because we have a lot of youngsters here joining the 2 sessions. We know it's very difficult. You are Hindi speaking, but also relaying the full hour in English is no mean feat. So thank you for help for doing that for us. आगे भी आपका लाभ लेंगे ऐसी हमें अपेक्षा है. Thank you very much. आप पूर्णावती कीजिए. Thank you. Yes, yes. Welcome. निज अच्छा लगा मुझे. निज ने बताई पुकारे उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतबार. जब मैंने last. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Jai Jinendra, thank you. Jai Thank Jinendra. you. Jai Shinendra. Jai Shinendra. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Jai Shinendra.